Hello, good afternoon student. We were studying about the keywords. So we discussed already electrode. Electrode is a metal rod dipped in its own ion solution that is known as a electrode. Electroplating, what you have learned का last point जो है वो इसकी definition है. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Good conductor, these are the material, they allow the electricity to pass through them, they are known as a good conductor. LED, light emitting diode. Poor conductor, these are the material, they do not allow or feebly allow the electricity to pass through them, they are known as a poor conductor. Now come to the exercise. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salts. The passage of an electric current through a solution causes chemical effects. If you pass current through a copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होंगे या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग. When the free ends of the tester are dipped in a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? Yes, it means this solution is good conductor of electricity. Name 3 liquids which when tested in the manner shown in above 14.9 figure may cause the magnetic needle to deflect. Number 1, if these liquids are able to show a deflection in magnetic needle, that means they are good conductor of electricity. So they may be acid solution, they may be base solution, or they may be salt solution. Acid solution, so many example at your home, in your kitchen, like lemon juice in water or vinegar, etc. And basic solution के लिए खाना सोडा, बेकिंग सोडा in water. And for salt solution, sodium chloride, ये आपका खाने वाला common salt होता है, that solution in the water. So they make good conductivity to the water. Now come to the question number 4. The bulb does not glow in the setup. What are the possible reasons? So इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? Bulb may be fused, battery may be discharged, and this solution is poor conductor of electricity, and connection may be loose, and bulb and wire is broken under the insulation. So these are the possible reasons by which bulb does not glow during this experiment. A tester is used to check the connection of electricity through two liquids, label A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for a liquid A. इसका मतलब A जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, while it glows very dimly for liquid B. इसका मतलब B जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है. तो A is better conductor than B. So first answer is correct. Does pure water conduct electricity? No. Pure water, distilled water can't conduct electricity. What can we do to make it conductor? We can add a small amount of acid, a small amount of base or a small amount of salt. इन तीनों में से थोड़ा सा एक पिंच कोई भी डिजोल्व कर देंगे तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर हो जाएगा. Question number 7. In case of fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply from the area. Explain why they do this. जो कॉमन हमारा नॉर्मल वाटर होता है, ड्यू टू द डिजोल्व मिनरल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ड्यू टू द इफ वी ट्राई टू डू द फायर विदाउट शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इट मे बी एक्सीडेंटल ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. तो फायर में स्प्रेड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट. दूसरी बात कि फायरमैन जब वाटर हॉसेस का यूज कर रहा है तो वाटर इज गुड कंडक्टर, सो इट मे बी एक्सीडेंटल फॉर द फायरमैन. वो दैट कैन बी सफर बाय द इलेक्ट्रिक शॉक. सो दिस इज द रीजन कि किसी भी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को वाटर कट ऑफ कर देना चाहिए अगर हम उस बिल्डिंग की फायर को वाटर हॉसेस से पुट ऑफ करना चाहते हैं. Question number 8. A child is staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compass needle deflect more in the sea water. What is the reason? Sea water having more concentration of the salts or minerals. That's why it is better conductor in comparison to the drinking water. आया समझ में?
यानी कि जो हमारा सी वाटर है उसमें डिजोल्व सॉल्ट का अमाउंट, मिनरल्स का अमाउंट ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ निडल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा और दैट इज़ वाई इट इज़ इट इज़ बेटर कंडक्टर देन द ड्रिंकिंग वाटर. Is it safe for the lactation to carry out lactical repair outdoor during heavy downpour? No, not at all. ठीक है, रीजन क्या है? रेन वाटर when passes through the atmosphere dissolves so many gases like oxides of nitrogen, oxide of sulfur and carbon dioxide, and these gases make the rain water acidic. So this is the reason if lactation work outside, इलेक्ट्रिकल रिपेयर का काम आप बाहर कर रहा है तो इट मे बी एक्सीडेंटल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक, राइट, क्योंकि रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 10. पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल वाटर. यस, क्योंकि वाटर वेपर्स होती हैं जो क्लाउड बनाती हैं तो इसलिए ये उतना ही प्योर होता है जितना कि डिस्टिल वाटर. सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर. अब उसने उसको टेस्ट किया. अब उसने ये देखा कि कंपास नीडल तो डिफ्लेक्शन शो कर रही है जबकि डिस्टिल वाटर है तो नहीं करनी चाहिए. तो क्या रीज़न है? वही रीज़न है जो पिछले क्वेश्चन में था कि व्हेन रेन वाटर पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट डिसॉल्व सो मैनी गैसेज एंड बिकम conducted due to ionization of these acids that form in the rain water. For example, नाइट्रोजन डिजोल्व हुआ, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व हुआ, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा. So these acids get ionized and make the rainwater conductor. Prepare a list object around that are electroplated. This is your homework. You can do that. आपके आसपास आपके घर में जितनी भी चीज़ें electroplated हैं you can make that list. Question number 12. The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. कॉपर प्योरिफिकेशन के लिए भी हम सेम सेटअप यूज़ कर सकते हैं. अगर एक थिन प्लेट हमें प्योर कॉपर की दी गई है और थिक प्लेट इम्प्योर कॉपर की दी गई है तो मैंने आपको बताया है इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होता है और कॉपर जो है वो इम्प्योर कॉपर को यहाँ पे हमें डिसॉल्व करना है और जो थिन प्योर कॉपर की प्लेट है उस पे हमें प्योर कॉपर को डिपॉजिट करना है क्योंकि हम यहाँ पर इम्प्योर कॉपर का प्योरिफिकेशन करने जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक सेल लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और जो ये रॉड हमें दे रखी हैं इन्हीं के हम इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे. इसमें हम चूंकि एनोड डिसॉल्व होता है इसलिए इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे और कॉपर आयन अपोजिटली चार्ज कैथोड पे, कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है तो अपोजिटली चार्ज कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, इसलिए हम कैथोड का निगेटिव टर्मिनल बनाएंगे. ठीक है. सो कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज साउट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट. अब हमें क्या करना है प्योरिटी के लिए कि इम्प्योर जो रॉड है कॉपर की उससे कॉपर तो डिपॉजिट हो जाए थिन रॉड के ऊपर और इम्प्योरिटीज सोल्यूशन में रह जाएं. तो विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल? इम्प्योर कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ना है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड बनाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड डिसॉल्व होता है ऑफ बैटरी एंड वायर्स. दिस इज fully explained to you. Now extended learning activity and projects. इसमें से आपको बहुत कम करने हैं. वेरियस फ्रूट जूसेस लेने हैं, उनको टेस्ट करना है टेस्टर से. तो आप बल्ब ले सकते हैं. आजकल दिवाली में आपने एलईडी जलाए होंगे, कोई फ्री एलईडी हो उसको यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, थर्ड नहीं करनी है, फोर्थ आप करिए. इसमें आप ये मान के चलिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो क्या आपका आउटलुक रहेगा? सर्च फ्रॉम द नेट एंड मेक अ शॉर्ट नोट फॉर दैट. इसे आप नेट से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लोगों की हेल्थ पे क्या असर होता है ये आपको देखना है. ठीक है. फाइंड आउट द हेल्थ कंसर्न एसोसिएट विद क्रोमियम प्लेटिंग, ये क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये देखना है. और फिर उसके क्या रिजोल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से उसको रेक्टिफाई की जा सकती है प्रॉब्लम, ये भी है. तो इस पर आप एक एक शॉर्ट नोट दोनों पे लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 ये एक प्रोजेक्ट वर्क है. इसमें आपको एक मेटल प्लेट लेनी है और उस पर पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च का पेस्ट लगाना है.
वायर की हेल्प से बैटरी को इस तरीके से जोड़ना है जैसा कि फिगर में दिखाया, और एक एंड फ्री रखना है। ठीक है, तो जब आप इस फ्री एंड से इस पे कुछ लिखेंगे पेस्ट के ऊपर, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यू विल बी एबल टू डू केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च। यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन फ्री होगी। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड आयोनाइज होगा तो पोटेशियम सॉल्यूशन में रह जाएगा। आयोडीन जो है नेगेटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगी और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच के आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आयोडीन जो है स्टार्च के साथ ब्लैक कलर देता है, इसलिए जहां जहां आप इस पॉइंटर को चलाएंगे वहां ब्लैक कलर के स्पॉट्स आएंगे। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ऑन इट। ठीक है, थैंक यू।